Hello students, good morning. Today we are going to learn chapter number 11 Veditavyani Mitrani. Mitrani, it is a Bahuvachan, means friends. Veditavyani means should be familiar, otherwise should be known. The title meaning is what? Friends should be known, यानी ऐसे मित्रों को हमें जानना चाहिए. So it is a long poem, it is a महाभारत long poem. उसकी रचना द्वापर युग में की गई थी. So now it is known as the longest literary work in the entire world is the Mahabharata. पूरे विश्व में प्रसिद्ध है ये महाभारत की काव्य. It is composed by whom? It is composed by Maharishi Vyas. The Mahabharata has about 1 lakh slokas. There are 18 parvas in the Mahabharata. The first parva is Adi Parva, while the last is a Swargarohana Parva. Parva means it is a part. It is a one different parts are there. In the 12th, one Shanti Parva, solutions to many problems of life have been dealt with. Shanti Parva में क्या है? Shanti Parva they are teaching us how to live in a life, how to deal with the problems or any situation. They are telling us महाभारत में हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, बहुत सारी जीने की राह मिलती है. How to live life if any circumstances like this come, any problems has come, so how we have to face, we have to face with a very calmness, very politely. तो हमें जो हमारी राह में जो मुश्किल और अड़चन आती है उसके साथ हमें कैसे सामना करना चाहिए. So it is teaching to us. In the Shanti Parva there are 365 chapters. These chapters are further internally divided into Raj Dharma Anushashan Parva. Raj Dharma Anushashan is a teaching by Bhishma Pitama to Yudhishthir. जब युधिष्ठिर राजा राज करने जा रहे थे, अपना राज्य संभालने जा रहे थे, when he has first time become king, so that time he has given some guidance, some he has preached to the युधिष्ठिर कि एक राजा कैसा हो और राजा को अपने दुश्मन के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए और अपने दोस्त के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए और what is the main thing, how to recognize them, how they are, we have to identify. They are telling us. So it is very important in a human life. And Apadharma Parva and Moksha Parva, etc. Among these, in the Apadharma Parva, there is a dialogue between Bhishma and Yudhishthira. You know very well who is the Bhishma? Bhishma is the grandfather of Yudhishthira and Pandavas and Kauravas. यानी पांडव और कौरव का जो बोलते हैं ना कि दादा तो था मगर अपने जो पिताजी होते उसका भाई था, तो उसका जो बड़ा भाई था यानी उसके तो दादा समान ही हुआ. सो भीष्म एंड युधिष्ठिर विच इज़ द टीचिंग ऑन पॉलिटी. भीष्म जो थे वो एक बड़े ही उम्दा राजा थे एंड ही वॉज टीचिंग टू द युधिष्ठिर. युधिष्ठिर को एक अच्छा राजा हो तो कैसा हो. He was teaching him that. On a polity, very nice policy he was teaching to him. In this, there is one occasion where Yudhishthir is advised to maintain friends. And main thing is what? When any king is become king, जब एक इंसान, जब एक राजकुमार होता है, जब राजा बन जाता है, so he has to maintain many policies, many problems and many good things they have to learn. So एक दुश्मन में और दोस्त में क्या अंतर होता है वो उसको अच्छे से समझना चाहिए. अंतर है तो कैसा है और कैसे जाना जाए कि यह अंतर यहाँ पर ऐसे रखना चाहिए. So during this advice it is also show how friends should be. दुश्मन की बात तो यहाँ पर की गई है मगर फ्रेंड्स भी कैसे होते हैं, how they are made and how they are helpful to us. So now we are going to learn this poem. वेदितव्यानि मित्राणि विजयाश्च अपि शत्रवः एतत्सु सूक्ष्मं लोके अस्मिन् दृश्यते प्राज्ञसम्मतम्. वेदितव्यानि, जब टाइटल हमने पढ़ा था, I have told you वेदितव्यानि means what? Should be known. To whom we should be known? मित्राणि, friends. Vignaya cha api, and also we should
familiar with them. Vignaya means should be known again. Shta api, api to them also. To whom? Shatravaha. To enemies also we have to identify. Shatru and Ripava, it is a similar, it is a Samanarthi Shabda. Etata, that all. Susukshma loke asmina. It is a very small thing, but it is a very important and very difficult to find out difference between both. दृश्यते प्राज्ञ सम्मतम, जिनके अंदर इन सब चीज़ों को परखने शक्ति होती है वही एक उम्दा राजा होता है. It is a very small thing, but it is a very necessary to differentiate between enemies and friends, because we don't know when somebody is coming in disguise of enemies as a friend and friend is the enemies. So we should differentiate between both of them. So Veditavya Mitrani Vigneshcha Shatrava means friend should be well examined, and Vigneshcha api Shatrava means foes, means enemies also should be known and should be well studied by us before making them an enemy, otherwise making them friend. We should be familiar with them very well. Etata, this susukshma, it is a very small thing. It is a very less thing, but it is a very important. Like these things, loke asmina drishyate pragna sammatam, means those who are learning this thing to how to differentiate between that, they are very intelligent. They are very understanding people. Those who are understanding these all things, those who has learned all these things. फ्रेंड्स को एग्जामिन करना और शत्रु को एग्जामिन करने में क्या अंतर होता है और उसके मायने क्या होते हैं, उसके जो मापदंड होते हैं वो क्या होते हैं. इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग्स, इफ़ यू आर हैविंग दैट, बोलते हैं कि वो नज़रिया होता है हमारे अंदर परखने का, देन वी आर बिकमिंग अ वेरी नाइस एंड नोबल किंग. शत्रु रूपा ही सुयदो मित्र रूपाश्च शत्रवः संधित अस्ते न बुध्यन्ते काम क्रोध वशम गताः. शत्रु रूपा ही means in the disguise of foes, in the disguise of enemies, really. So Shatru Rupahi Suyado Mitra Rupascha Shatravaha. What they are telling? In the disguise of friends, sometimes foes also coming, sometimes enemies also coming, and in the disguise of enemies, they are sometimes become our friend also. So how to find out the reality of them? How we will identify their reality? So Shatru Rupahi Suyado Mitra Rupascha Shatravaha. In which time, in what time they will come in the face of our enemies. If वो अंदर से हमारा हित चाहते हो, मगर कभी कभार क्या होता है कि हमें वो दुश्मन लगते हैं. सो वी आर थिंकिंग दे आर नॉट थिंकिंग गुड फॉर अस, सो वी आर थिंकिंग दे आर आवर एनिमीज, एंड समटाइम एनिमीज इज कमिंग इन आवर फ्रेंड्स डिस्गाइज. लगता है हमारे दोस्त जैसा, मगर होता है हमारा दुश्मन. एक्चुअली दे आर नॉट आवर friends, they are in disguise of friends, they are our enemies. Those are thinking bad about us, those are thinking very crucial about us. So what to do when sometime like this situation is coming? Sandhita aste na buddhyante kama krodha vasham kata. Sandhita means in the alliances of our form, means वो हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं. Sometimes what happens, they are connecting with us. Na buddhyante are not understood kama krodha vrosha gataha, means it is very difficult to really move by the desire or anger. So what it is telling, when friends comes in the guise of foes and foes in the guise of friends, यानी दुश्मन के अंदर छुपा हुआ दोस्त और दोस्त के अंदर छुपा हुआ शत्रु. So how to find out them? When alliances of friendships are formed, it is difficult for the parties are really moved by desire or anger. So we are not understanding how to control our anger and how to control our emotions. So
we have to keep balance in our emotions when something like this situation has come in front of us. So we have to maintain balance in our mind. We should not imbalance our patience. We have to keep patience. We have to understand what is the reality, and then only we can take any reaction. दैट इज़ वाई युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता था. वाई? धर्मराज यानी वह धर्म को अच्छे से जानता था. ही वॉज वेरी बैलेंसिंग पर्सन बिटवीन देयर ब्रदर्स, बिटवीन देयर रिलेटिव्स. कौरव एज सच देयर एनिमीज. कौरव उनके चाचा के लड़के थे, धृतराष्ट्र के. देन ऑल्सो वो दुश्मन थे, मगर वो कौन थे? उसके चाचा के लड़के, यानी अपने थे मगर फिर भी वह दुश्मन थे. तो जब दुश्मन के रूप में आते हैं तो उसके साथ कैसे व्यवहार करना है, और जब दोस्त के रूप में आते हैं तो उसके साथ कैसे व्यवहार करना है, वो उसका जो बैलेंस है. एज अ किंग ही इज़ अ एनिमी ऑफ देम, एंड एज अ ब्रदर ही वॉज द रिलेटिव ऑफ देम. तो ये जो संतुलन होता है, ही वॉज वेरी वेल अबाउट दिस थिंग. तो ये जो बैलेंस था, इसीलिए उसको धर्मराज कहा जाता था. धर्मराज युधिष्ठिर ऐसा ही नहीं कहा जाता था. सो दैट थिंग जो भीष्म पितामह था वह उनको समझा रहे थे. नास्ति जातु रिपुनाम मित्रम नामो न विद्यते व्यवहारा उच्च जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा. जातु मीन्स it is a proper. Ripu means your enemy, and Nam means certainly. And then what? Mitram namo na vidyate. Mitra nam yani name of a friend. Na vidyate means it is not an understanding by as a friend. Vyavaracha jayante mitrani ripavas tatha. Vyavaracha, it is a occur by the व्यवहार. इसकी जो व्यवहार होता है, इसकी जो सर्कमस्टांसेस होती है, फ्रॉम दैट वी कैन अंडरस्टैंड द फोर्स ऑफ आवर सर्कमस्टांसेस. समटाइम दे आर बिकमिंग एनिमीज बिकॉज ऑफ आवर circumstances. It is not forcefully they are becoming, by nature they are not like that. By the situation, by the calamities, they are becoming like this. So that thing as a king you have to keep in mind. जो धृतराष्ट्र के जो चाचा थे भीष्म पितामह, वह युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे थे कि तेरे सामने अगर दुश्मन होता है तो दुश्मन क्यों है, कैसे है, वह समझना बहुत ही जरूरी है. ऐसे ही कोई दुश्मन हमारा बन ही जाता है. सो ही वॉज टेलिंग जायंत मीन्स दे बिकम. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट मित्र और शत्रु कैसे बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कभी कभार जो रास्ते पर चलता है वो हमारा दुश्मन भी नहीं होता है, मित्र भी नहीं होता है, बट दे आर मेकिंग सम मिस्टेक्स एंड बिकॉज ऑफ देम वी आर फॉलोइंग डाउन ऑन द रोड. सो पर्पसली दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू अस, बट वी आर थिंकिंग दे माइट हैव समथिंग बाय पर्पस. सो वी आर बिकमिंग एंग्री ऑन देम. वो हमारे दोस्त नहीं होते, फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हमारे दुश्मन जैसे हैं. सो रियली स्पीकिंग, there is no such thing as an enemy or a friend. Person become friends as well as enemies due to circumstances. जो युधिष्ठिर के साथ हुआ था, वो जो कौरवों ने किया था, खास करके जो दुर्योधन और जो दुर्योधन ने किया था उसके साथ, वो क्यों किया था? बिकॉज जो द्रौपदी थी, जो पांडवों की पत्नी थी, उन्होंने कौरव को क्या बोला था? अंधे के पुत्र अंधे ही होते हैं. सो दैट थिंग ही स्पोक वेरी रॉन्ग. बिकॉज ऑफ दैट थिंग ओनली उसने अपने दिमाग में एक गांठ बना दी कि वाई शी हैज स्पोक मी लाइक दिस. तो जो ईगो पर बात आती है तो उसके अंदर दुश्मनी ज़्यादा पनपने लगती है, दुश्मनी घर कर जाती है, और सोचते कि अब उसने मुझे ऐसे देखकर नीचा गिराया तो मैं उसको हरा के नीचा गिराऊंगा. सो आफ्टर दैट दे ट्राई, उन्होंने एक के बाद एक दूसरे को हराने की कोशिश की. एंड देन दे डिसाइड लाइक दिस थिंग. सो दे आर बिकमिंग एनिमीज ड्यू टू सर्कमस्टांसेस ऑफ लाइक दिस सिचुएशन. जैसे कि हुआ, यो यस्मिन जीवति स्वार्थ पश्येत पीड़ा न जीवति
स तस्य मित्रं तावत् स्याद यावन्न स्याद विपर्यय। यो यह एनी हु एनी पर्सन, हु इज एनी पर्सन यस्मिन जीवति, as long as they lives, about any person, any human they are telling, as long as they live, पीडाम पश्यत यानी किसी को पीड़ा करते हुए देखना, किसी को पीड़ित होते हुए देखना। रिपवस तथा मीन्स इफ दे आर एनिमीज ऑल्सो, जो स्वार्थ को देखकर जिंदा रहता है और जो पीड़ा को नहीं देखता है, जो स्वार्थ को ही देखता है, तो वो मित्र तब तक होते हैं जब तक उसका स्वार्थ पूरा नहीं हो जाता है, जब तक वह बदलता नहीं है। स तस्य मित्रम तावत स्याद यावन्न स्याद विपर्यय। विपर्यय मीन्स चेंज, till how they are not changing, so those who are having selfishness, those who are having greed, any intention, उसका जो स्वार्थ पूरा नहीं होगा तब तक, कब तक, तब तक वह ऐसे कैसे रहेंगे, अदरवाइज दे विल चेंज, इमीजिएटली आफ्टर दैट दे विल चेंज। सो हियर व्हाट दे आर टेलिंग, those about people who regards his own interest, because यानी उसका जो स्वार्थ होता है, as long as another person lives and thinks them having any pain, when the other person having this pain, they takes other person as a friend, as long as there is no change or any reveal in this state of things, means they are never going to change, they are having any if selfishness, उसके अंदर कोई स्वार्थ होगा तब तक वह वैसे के वैसे रहेंगे। बट इफ़ दे आर हैविंग एनी प्रॉब्लम दे विल नॉट एज मच एज हेल्प देम, वो उनको इतनी हेल्प नहीं करेंगे जितनी उन्होंने उनको की थी। यानी अगर हमसे हमारे अंदर कोई ऐसी दुश्मनी पनपती है और उसकी पीड़ा होती है तो हम उसको देखकर खुश हो गए। एंड एज सच अवर एनी इंटेंशन इज़ कंप्लीटिंग, और हमारी कोई इंटेंशन अगर कंप्लीट हो जाता है तो व्हाट वी विल डू, वी विल लीव देम एज इट इज़। मित्र तब तक मित्र होते हैं जब तक वह बदलते नहीं हैं। अगर वह बदल गए, अगर चेंज हो गया, अगर उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वह दुश्मन हो जाते हैं, यानी वह हमारे नहीं होते, पराये हो जाते हैं। सो दैट श्लोकास इट इज टीचिंग अस लाइक दैट। नाउ 5th नंबर श्लोकास, मित्रं च शत्रुताम इति कस्मिचितं कालपर्यये शत्रुश्च मित्रताम इति स्वार्थो हि बलवत्तरः। कस्मिचितं कालपर्यये, इट मीन्स व्हाट, इट्स अ सर्टेन चेंज इन अ टाइम। सो व्हाट दे आर टेलिंग, समय के बदलने के साथ शत्रु मित्र बन जाते हैं और मित्र शत्रु बन जाते हैं, यानी जो पर्पस होता है वही सबसे बलवत्तर होता है। बलवत्तर यानी सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। द सेल्फिशनेस, स्वार्थ, दैट इज ओनली द मेन थिंग। मित्रम शत्रुताम इति, so first line only, what it is, a mitram shatrutam iti, a friend becomes enemy. He yani really they are like that, balvatara more powerful, स्वार्थो ही बलवत्तर, they are only the strong। ना दोस्त बड़ा है ना दुश्मन बड़ा है, सबसे बड़ा क्या होता है, स्वार्थ। स्वार्थ के लिए ही पूरी दुनिया जीवित है। इफ यू आर हैविंग एनी बेस्ट फ्रेंड, इफ यू आर हैविंग एनी वेरी क्लोज फ्रेंड, so what you will do, if they are helping you in making notes, if they are helping you in anything which you are not able to do, और आपको क्या होगा कि ये मुझे अच्छे से हेल्प करता है तो क्यों ना मैं उसको दोस्त बना लूँ, तो वो मुझे रोज़ हेल्प कर दे। सो बिकॉज ऑफ दिस थिंग यू आर टेकिंग हेल्प ऑफ देम। तो ये एक स्वार्थ होता है, एक इंटेंशन होता है, उससे आपकी दोस्ती होती है एंड यू आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दैट। बट व्हेन यू नॉट नीड ऑफ देम, इफ़ यू नॉट नीड ऑफ देम, यानी आपके पास जो चीज़ है वो आपकी कंप्लीट हो गई, आपको ज़रूरत नहीं है, आपका वो चीज़ का कोई मतलब नहीं है, देन व्हाट यू विल डू, यू विल फिनिश योर फ्रेंडशिप विद दैट पर्सन। सो दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग। सो हियर दे आर टेलिंग स्वार्थ ही सबसे स्ट्रांग होता है। मोर पावरफुल थिंग इज़ व्हाट, सेल्फ इंटरेस्ट। So what they are telling, when the time, any circumstances, any good or bad circumstances, some two people, some very good friends, how they are becoming friends, something similarity is there, otherwise something any selfishness is there, then only some are becoming friends. So
Because of the circumstances, changes, a friends becomes enemy and enemy becomes friend. दुश्मन दोस्त बन जाते हैं, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं. कैसे? स्वार्थ से, किसी ज़रूरत से, किसी ज़रूरतमंद चीज़ों से ही किसी के जो जो दोस्ती होती है वही होती है. इंडीड सेल्फ इंटरेस्ट इज़ मोर पावरफुल. या अदरवाइज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? स्वार्थ. स्वार्थ से ही दोस्ती बनती है, स्वार्थ से ही दोस्ती टूटती है. सो हियर दिस 5 श्लोकास वी आर कंप्लीटिंग हियर. You have to learn this slokas very well, and in the next lecture I will give you notes and translation of this lesson.